ڈیجیٹائزیشن کے تھرو جو سارا کا سارا ریکارڈ ہوتا ہے, جو سامان پرزنر کو دیا جاتا ہے جو فیملی کی طرف سے, یا جو پیسے جمع کروائے جاتے ہیں, وہ سب ڈیجیٹائزیشن کے تھرو اکاؤنٹس میں جمع کیا جاتا ہے, اور سارا کمپیوٹرائزڈ ہے کہ جو بھی قیدی کو ملنے فیملی والے آتے ہیں وہ ان کو میک شور کرتے ہیں کہ جو وہ چیزیں ان کو دے رہے ہیں اس کی پوری ایک سلپ ہو, جس کے اندر اگر ایپلز ہیں, سبزی ہے, پھل ہے, کپڑے ہیں, وہ سارے کے سارے ریکارڈ میں آ جاتے ہیں. اور پھر جب وہ ملتے ہیں پرزنر کو تو وہ, میں نے ان سے پوچھا کنفرم کون کرتا ہے, تو ان کا یہی ریکارڈ ہوتا ہے, اسی کے تھرو پھر ہم اس کو جب وہ ریسیو کر لیتے ہیں تو وہ ہم اس کو ایکسیپٹ کر لیتے ہیں. پھر اس کے ساتھ ساتھ جو ان کی ایکسرسائزز ہوتی ہیں, اوپن جمز ہیں, اور بہت ضروری ہے کیونکہ دیکھیں ایک اگر پرزنر ہے چاہے وہ کافی سال اس نے رہنا ہے تو ریہیبلیٹیشن, اس کی کاؤنسلنگ کرنا اور اس کو ایک بہتر انسان بنانا, چاہے وہ ساری عمر یہاں پر ہے, چاہے وہ عمر قید کی سزا ہو, مگر وہ ہے تو انسان, اس کو کتابیں پڑھنے کا, اس کو ٹی وی دیکھنے کا, اس کو دنیا میں کیا ہو رہا ہے, اس کو تعلیم اگر وہ حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ان کو علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کے تھرو اجازت ہے. یہ جو فیسلٹیز یہاں دیکھی ہیں, اور پھر انہوں نے کہا ہے اور میں نے خود بھی دیکھا ہے کیونکہ کرونا کے وقت آپ کو یاد ہوگا کہ پوری دنیا کے اندر یو این سیکرٹری جنرل نے بھی کافی اس کے اوپر آواز اٹھائی تھی کہ جو جیلز ہیں اس کے اندر اوور پاپولیشن جو ہے وہ ان ایکسیپٹیبل ہے, کیونکہ اوورلی پاپولیٹڈ ہے ہندوستان کی جیلیں, جس میں ہزاروں کیا لاکھوں کشمیریوں کو جیلوں میں بند کیا ہوا ہے. تو جب میں یہاں پر آئی میرا پہلا سوال ان سے یہی تھا کہ کیا یہ اوور پاپولیٹڈ نہیں ہے, تو کہتے ہیں ہم ساری فیسلٹیز دے رہے ہیں مگر ابھی تک جو ہے اسلام آباد کا جو جیل ہے وہ ابھی تک نہیں کنسٹرکٹ ہوئی ہے. تو اسلام آباد کے بھی پرزنرز یہاں پر آ رہے ہیں, 6800 کے لگ بھگ یہاں پہ جو پرزنرز کو انہوں نے یہاں پہ ان کو رکھا ہوا ہے. مگر یہ ان کا ویلڈ ہے جو میں پرائم منسٹر کے ساتھ بھی یہ ٹیک اپ کروں گی کہ جو پرزنرز ہیں ان کی جو شفٹنگ کی جائے 3 ٹائم زیادہ ہیں, تو وہ بڑا امپاسبل ہو جاتا ہے سب کو کیٹر کرنا. حالانکہ ان کے پاس اراؤنڈ 150 کیمراز ہیں اینڈ دے ڈیمانڈنگ مور. یہ تو ان کا انٹرنل ہے, مگر ہر جگہ جو واچ کیا جاتا ہے تو کہتے ہیں بہت زیادہ ویجیلنس اور بھی چاہیے ہوتی ہے کیونکہ ہر طرح کی باتیں ہو سکتی ہیں. پرزنز ہیں, ہائی سیکیورٹی زونز ہیں, پھر ان کے اوپر چیک بھی رکھنا ہوتا ہے. تو ایک تو یہ بات ہے, اور دوسری کے پی کے کہ بہت سے جو پرزنرز کتنی ہے وہاں 500 کے لگ بھگ ہیں کے پی کے جو پرزنرز یہاں پر ہیں, ان کو بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ جو ان کے علاقے ہیں ان کے اندر ان کو شفٹ کرایا جائے کیونکہ ان کی جو فیملیز آتی ہیں دور دراز علاقوں سے تو وہ ان کے لیے بڑی پرابلم ہو جاتی ہے. تو یہ ان کے وہ جائز جو باتیں ہیں جو کہ میں نے خود بھی جو وہاں پہ جو پوائنٹس دیکھے ہیں, نوٹ کیے ہیں, اس میں بھی مجھے یہ سب سے امپورٹنٹ لگا ہے کہ اوور پاپولیٹڈ ہونا, اور پھر اس کے ساتھ ساتھ جو بچوں کو جس طریقے سے جوونائل پرزنز میں بھی میں گئی ہوں, وہاں پہ بھی بچوں سے ایک ایک کو مل کے وہاں جو کریں, بہت سے ان کو ٹیلرنگ کی سکل سکھائی ہیں, کمپیوٹرز کے اوپر وہ سی وی بنانا سکھایا جا رہا ہے ان کو. تو یہ بہت ضروری ہے کہ ان کو شیطان نہیں بنانا, ان کو صرف گلٹ میں نہیں رکھنا ہوتا اگر ایک پرزنر کو آپ نے رکھا ہے, بلکہ اس کی کاؤنسلنگ کی جاتی ہے, چاہے اس کی سائیکولوجیکل کاؤنسلنگ ہے, چاہے اس کی اسپرچل کاؤنسلنگ ہے, چاہے اس کی فزیکل جو نیوٹریشنز ہیں. اور بچے بھی ہیں, بہت سی عورتوں کے یہاں پہ بیبیز ہیں اور چھوٹے چھوٹے انڈر ایج بچے ہیں جن کی پیدائش بھی یہیں پر ہوئی ہے, اور بہت سے کیسز جو ہیں مرڈر کے منشیات کے ہیں. مگر پھر بھی یہ میں ان کی, کیونکہ میں نے ان کے ساتھ اکیلے میں بھی بات کی ہے ٹو میک شیور کہ ان کے اوپر کوئی پریشر نہ ہو کسی کی طرف سے, تو میں نے ان سے جو باتیں کی ہیں آئی ٹیک. بٹ بات یہ ہے کہ یہاں پہ آ کے مجھے اس چیز کا اور بھی زیادہ احساس ہوا ہے کیونکہ ہماری تو آنکھ کھلی ہے مقبوضہ کشمیر کے جیلوں میں, پرزنز میں. یاسین صاحب کا دوسرا نہیں پہلا گھر ہی جیل ہے, تو جیل میں جب میں نے بھی جانا ہوتا تھا یا میری بیبی نے بھی, تو ہمیں بھی جس طریقے سے باڈی سرچ کیا جاتا تھا خاص طور پہ بیٹی کو, اور اب بھی وہ ایک ڈیتھ سیل میں نے خاص طور پہ ڈیتھ سیلز کا بھی ان سے پوچھا اور پولیٹیکل پرزنرز کا, تو جو وہاں کا اگر میں کمپیئر کروں تو زمین آسمان کا ڈفرنس ہے. جو انٹرنیشنل کووننٹس ہیں آن دا رائٹس آف پرزنرز, جو جنیوا کنونشنز ہیں اس کے اکارڈنگلی ہمیں تو کوئی رائٹ ہی نہیں ملا. یہ ٹیلی فون کی بات کرتے ہیں 4.5 سال سے یاسین صاحب سے کوئی اجازت ہی نہیں ہے کہ ہم ان سے ٹیلی فون کے اوپر بھی بات کر سکیں, کوئی لیٹر بھیج سکتے ہیں, کوئی فیکس کو ان سے ملاقات کر سکیں, اور پھر اس کے ساتھ ساتھ نہ ان کا کوئی لائر ہے, اور سب سے بڑھ کے فزیکلی پروڈیوس نہیں کیا جاتا ان کو جیل سے. اور جب ان کو لے کے بھی ایک دفعہ گئے سزا سنانے کے لیے لے کر گئے, اور دنیا کی ابھی جو لیٹسٹ جو لیٹر آیا ہے ایمنسٹی انٹرنیشنل اور 5
बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस की तरफ से हिंदुस्तान की तरफ कि अगले महीने वो जो G20 का समिट कर रहे हैं वहाँ पे, उसके अंदर उन्होंने स्ट्रॉन्ग वर्ड्स में कहा है कि उससे पहले जो वहाँ पॉलिटिकल प्रिजनर्स हैं, जो ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट हैं, उनको रिलीज कराया जाए, जो कश्मीर के अंदर ह्यूमन राइट्स का अब्यूज हो रहा है। तो यहाँ पे भी बड़े बड़े जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं पाकिस्तान के, उनका भी मैंने पता किया जो हाई प्रोफाइल हैं, तो उनका भी जो मुझे रिपोर्ट्स आई हैं कि मोस्ट ऑफ देम, सारों का जो मेन थोड़े से ही हाई प्रोफाइल, कि उनको मुलाकात की इजाज़त है, अपनी वाइफ से, अपने बच्चों से इजाज़त है, उनको लॉयर रखने की इजाज़त है, टेलीफोन पे बात करने की इजाज़त है, उनको लेटर भेजने की, उनको घर से कोई चीज़ें भेजने की। तो ये हमारे लिए, कश्मीरियों के लिए ये एक मोज़ा है कि इस तरह के राइट्स हमें दे दिए जाएं। इवन मुझे याद है जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद को जब फांसी देने लगे थे, उससे पहले भी उनकी वालदा और उनकी जो बेटी थी वो उनको खुद वहाँ पे मिलने जाती थी। और ये आलम ये है कि हम लोग यहाँ पे सड़कों के ऊपर अपने राइट्स मांग रहे होते हैं, मगर वहाँ पे टस से मस नहीं होते। तो मैं चाहती हूँ कि ये दुनिया को भी एक पैगाम देना चाहती हूँ, ख़ास तौर पे पाकिस्तान के भी जो प्रिजनर्स हैं, ये मत समझें कि मैं एक प्रिजन में आई हूँ, मैं दूसरों में नहीं आऊँगी, मैं सब में जाऊँगी, क्योंकि हमारे लिए ये सबसे बड़ी इबादत है ह्यूमन राइट्स। और चाहे उसके अंदर कोई भी हो, चाहे वो कन्विक्टेड क्यों ना हो, सजा याफ्ता क्यों ना हो, डेथ पेनल्टी पे क्यों ना हो, जो उनके राइट्स हैं वो राइट्स उनको मिलने चाहिए। ये बताइएगा कि पाकिस्तान के अंदर भी बहुत से ऐसे लोग हैं जो झूठे केसेस में जेलों के अंदर बिल्कुल मिली भी होगी, क्योंकि आपसे शायद उम्मीद भी कर सकते हैं, क्या उनके लिए भी कुछ आप जी, ये बहुत आपने अच्छा सवाल पूछा है, क्योंकि बहुत से मैटर्स सब जुडिस हो जाते हैं साला साल कोर्ट्स के अंदर भी इतने ज़्यादा केसेस होते हैं, जजेस कम होते हैं, तो वो भी एक बहुत बड़ा एक मैटर होता है कि टाइम पे जस्टिस नहीं मिलता। तो यहाँ से मैंने इनसे भी कहा, रिक्वेस्ट की है कि जो यहाँ के प्रिजनर्स हैं, ख़ासतौर पे इधर इनके जो लीगल केसेस हैं, उनकी फाइल्स जो हैं उनको हमें फॉरवर्ड करें। वो हमारी पूरी जो लीगल टीम है ह्यूमन राइट्स के हवाले से, हम उसको चेक करेंगे, जो रिफॉर्म्स हो सकते हैं प्राइम मिनिस्टर को हम देंगे। और ये एक इंटरम सेटअप है और ये टेम्परेरी है और ये एक नॉन पॉलिटिकल सेटअप है, और इसके अंदर जितना मुझसे हो सकता है, क्योंकि मेरे लिए ये एक इबादत है ह्यूमन राइट्स, चाहे वो आपके राइट्स हों, चाहे वो किसी के हों पाकिस्तान में, जिस हद तक मैं कर सकती हूँ मैं करूँगी इंशाल्लाह। ये बताइएगा कि कश्मीर कौर का जब भी नाम लिया जाएगा, मुश्ताक मलिक का नाम सुना ही हुकूमत लिखा जाएगा, आपको इंसानी के आपको कश्मीर बनाया गया, तो जो आपने जेल का दौरा किया, यहाँ पे एक वर्ड होता है सब अच्छा है, यानी कि जो पैसे देते हैं सब अच्छे हैं। सुप्रीटेंडेंट साहब के खिलाफ कई दरखास्तें भी अदालत में समाप्त है, फिर अक्सर वाक़यात हो जाते हैं जेल के अंदर ब्लेड्स निकल आते हैं, जेल के अंदर गेम्स ऑपरेट होते हैं, जेल के अंदर मंशियात होते हैं। आप कह रहे हैं तहरीक प्रोग्राम हो रहे हैं, लेकिन क्या आपने उस चीज़ के जब भी कोई दौरा होता है जेल का तो सब अच्छा दिखाया जाता है, बैकफुट पे बिहाइंड दीवार क्या हो रहा है वो चीज़ें नहीं दिखाई? बिल्कुल, ये बहुत ज़रूरी होता है कि अचानक भी दौरे किए जाएं, जेलों के वहाँ पे हालात देखे जाएं। मगर जो मेरा पहला दौरा हुआ है, इसके अंदर भी ये मैंने फ्यू आवर्स पहले इनसे बात की है कि मैं यहाँ पे आना चाहती हूँ, और मेरे लिए ये मतलब कि ये मैंने स्टार्ट ही जेल से ही करना था मैंने, क्योंकि मेरा पैगाम भी यही है कि हर जो इंसान है वो इक्वल है, चाहे वो जेल का प्रिजनर है, चाहे वो किसी भी मल्टीनेशनल के अंदर कोई ऑफिसर है, या कोई स्टूडेंट हो किसी यूनिवर्सिटी में जिसको हरास किया जा रहा है, मेरे लिए सब बराबर हैं। और जो कंप्यूटर पोर्टल इन्होंने बनाया, उसका पूरा जो कंप्लेंट सेल जो सिस्टम बनाया है इन्होंने, जिसके थ्रू जो प्रिजनर्स हैं जो अपनी कंप्लेंट्स रिकॉर्ड कर सकते हैं, और वो सारी रिकॉर्डेड होती हैं कॉज और डायरेक्ट IG को जाती हैं, वो जो सारा सिस्टम है, मैंने इनसे रिक्वेस्ट किया है कि वो सारी उसका जो डिटेल्स भी और उसका पूरा का पूरा जो प्रपोजल है वो हमें सेंड करें, हम खुद भी उसको चेक करेंगे और अपनी तरफ से भी जो हमारी बॉडी है वो उसको मॉनिटर करेंगे। विशाल, ये बताइएगा, आप खुद भी विक्टिम हैं ह्यूमन राइट्स वायलेशंस की, आपके हस्बैंड भी तिहाड़ जेल में इस वक्त बंद है, कश्मीर में इंसानी हकूक़ के हवाले से आपने एक्टिवली काम किया है, लेकिन इस वक्त आप एक स्टेट को रिप्रेजेंट कर रही है और मुशीर हैं आप वज़ीर आज़म की। अटक जेल में साबिक़ वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान इस वक्त बंद है, और उन्होंने बुनियादी सहूलियात के हवाले से शिकायत की है। एक जज साहब ने वहाँ का दौरा भी किया, उन्होंने भी उसको पॉइंट आउट किया है। क्या अटक जेल का दौरा करेंगी आप, वहाँ पे साबिक़ वज़ीर आज़म की जो शिकायत है उनका नोटिस करेंगी? देखिए, मेरे लिए चाहे कोई पॉलिटिकल लीडर हो, चाहे वो कोई आम कैदी क्यों ना हो, चाहे वो कोई बच्चा हो, चाहे कोई फ़कीर हो, जिस तरह बहुत से बेगर्स भी मैंने यहाँ पे देखे जिनको कैद किया हुआ है,
सब मेरे लिए बराबर हैं, मगर पॉलिटिकल प्रिजनर्स की जहाँ तक बात होती है, क्योंकि हम खुद एक पॉलिटिकल तहरीक को चला रहे हैं और हम जिस तरह विक्टिमाइज हुए हिंदुस्तान की ब्रुटैलिटीज़ की दुनिया में मिसाल नहीं मिलती, चाहे वो जुल्फ़िकार अली भुट्टो की बात हो जाए, चाहे वो नेल्सन मंडेला की हो जाए, मगर जिस तरीके से पामाल किए गए हैं, ख़ास तौर पे यासीन साहब के जो राइट्स थे कि वो अपना जो केसेस हैं वो अपने आप को डिफेंड करते, या उनको जिस तरीके से एक डेथ सेल में, और वो डेथ सेल 5/7 फीट का है और आपका कितने का डेथ सेल 10/12 का इनका है, और ओपन फैसिलिटी जिस तरह वहाँ पे किया जा रहा है, तो वो बहुत बड़ा एक ज़मीन आसमान का फ़र्क है। और चाहे वो अटक जेल हो, चाहे वो अडियाला हो, चाहे कोई भी मेन बड़ी जेलें हो, दूसरी हो, मेरे लिए सब कैदी जो हैं बराबर हैं, काबिले इज़्ज़त हैं। मेरे लिए कोई मैं क्योंकि हमारे लिए कोई वीआईपी हो या वीआईपी ना हो, वीआईपी अल्लाह की ज़ात है, मतलब अल्लाह के सामने है कौन वीआईपी है, मगर अगर उनके कोई राइट्स लिए जा रहे हैं, मैंने तो वैसे भी वहाँ का दौरा करना है, क्योंकि ख़ास तौर पे मेरा स्पेशल इंटरेस्ट है जेल के अंदर जब से मैंने मिनिस्ट्री संभाली है। मगर उसके साथ साथ जहाँ तक कश्मीर की तहरीक की बात है, वो इस पोर्टफोलियो की बात नहीं है, वो तो हमारी ज़िंदगी है। तो ये एक छोटा सा मौका मिला है, थोड़ा सा टाइम है कि मैं अपनी सर्विस जो है पाकिस्तान को भी थोड़ी बहुत दे सकूँ। विशाल, आपने जेलों के अंदर कैदियों के हुकूक के हवाले से विजिट किया, कंपेयर करिए हिंदुस्तान की जेलों में जो कैदियों हैं उनको दी जाने वाली सहूलियात के हवाले से। वहाँ तो गैर जो दीगर मज़ाहिब के लोग हैं, मुसलमान हैं, क्रिश्चियन हैं, उनके ऊपर तो अरसा हयात तंग किया गया, बार बार हिंदुस्तान वायलेशन कर रहा है, तशद्दुद कर रहा है। वहाँ तो जेल बना दी गई है, हुकूमत खाने बना देंगे पूरे हिंदुस्तान को गैर मज़ाहिब के लिए, उनके लिए, और पूरी दुनिया इसके ऊपर खामोश है। क्या 40,000 से ज़ायद जो हैं, जो डेटा स्टेटिस्टिक्स हैं कि मोदी के इन 2 टेन्योर्स के अंदर जो इबादत गाहों को टारगेट किया गया है, हज़ारों की तादाद में वहाँ पे मस्जिदों को शहीद किया गया है, वहाँ पे चर्चेस को बर्न किया गया है, वहाँ पे गुरुद्वारों को अटैक किया गया है। तो वहाँ पे तो मतलब कि इतना एक्सट्रीम लेवल पे स्टेट की तरफ से फुल सपोर्ट है हिंदुत्वा के नैरेटिव का, और जो जेलें जो उनकी भरी हुई हैं कश्मीरियों से, और वहाँ पे भरी हुई हैं उनके इनसे जो माइनॉरिटीज़ के वहाँ पे लीडर्स हैं, या जो वहाँ पे तहरीकें चल रही हैं। मानीपुर में आप देख लें क्या कुछ हो रहा है इस वक्त वहाँ पे, यूपी के अंदर जो गुजरात की अंदर 500 से ज़ायद मस्जिदें हिंदुस्तान मोदी ने वहाँ पे शहीद करवाई। तो वहाँ का तो हालात ही जो है कि दुनिया में सारे रिकॉर्ड ह्यूमन राइट्स वायलेशंस के उन्होंने क्रॉस कर दिए। थैंक यू। ये बताइएगा कि ये आप जेल का विजिट कर रही हैं, पिछले 2 घंटे से आपने जेल का विजिट किया है, जबकि बाहर 4 जो है प्रिजनर्स हैं जो है उनके अंदर कैदी मौजूद है, ठीक है, और शदीद गर्मी का मौसम है, इस वाले से आपका क्या कहना है? आप अंदर का बात करें या बाहर देखें इन कैदियों से क्या नहीं, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। आप उनको देखें कि आप प्रोटोकॉल में जो है शोर मचा रहे हैं, पानी नहीं है, तो ठीक है, अभी पता चला नहीं, तो यही तो मैं कह रही हूँ, मैं क्यों नहीं जाऊंगी वहाँ पे। जब एक पोर्टफोलियो है, जब एक पोर्टफोलियो मैंने लिया, मैंने किसी को दिखाने के लिए नहीं लिया, हमारी जिंदगी ह्यूमन राइट्स के लिए, तो ये इनके भी राइट्स इक्वल है इनके। नहीं, मैं सेटिस्फाइड की बात नहीं, मैंने इनसे सबकी रिपोर्ट्स मांगी है, सबके केसेस जो हैं प्रिजनर्स के। नहीं, आई कांट बी मैडम तो भाग गई। जो डिजिटाइजेशन के थ्रू जो सारा का सारा रिकॉर्ड होता है, जो सामान प्रिजनर को दिया जाता है, जो फैमिली की तरफ से, या जो पैसे जमा करवाए जाते हैं, वो सब डिजिटाइजेशन के थ्रू अकाउंट्स में जमा किया जाता है, और सारा कंप्यूटराइज्ड है कि जो भी कैदी को मिलने फैमिली वाले आते हैं वो उनको मेक श्योर करते हैं कि जो जो वो चीज़ें उनको दे रहे हैं उसकी पूरी एक स्लिप हो, जिसके अंदर अगर एप्पल्स हैं, सब्जी है, फल है, कपड़े हैं, वो सारे के सारे रिकॉर्ड में आ जाते हैं। और फिर जब वो मिलते हैं प्रिजनर को, तो वो मैंने इनसे पूछा कंफर्म कौन करता है, तो उनका यही रिकॉर्ड होता है, इसी के थ्रू फिर हम उसको जब वो रिसीव कर लेते हैं तो वो हम उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। फिर उसके साथ साथ जो इनकी एक्सरसाइजेज होती हैं, ओपन जिम्स हैं,
اور بہت ضروری ہے کیونکہ دیکھیں ایک اگر پرزنر ہے چاہے وہ کافی سال اس نے رہنا ہے تو ریہیبلیٹیشن اس کی کاؤنسلنگ کرنا اور اس کو ایک بہتر انسان بنانا, چاہے وہ ساری عمر یہاں پر ہے, چاہے وہ عمر قید کی سزا ہو, مگر وہ ہے تو انسان. اس کو کتابیں پڑھنے کا, اس کو ٹی وی دیکھنے کا, اس کو دنیا میں کیا ہو رہا ہے, اس کو تعلیم اگر وہ حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ان کو علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کے تھرو اجازت ہے. یہ جو فیسلٹیز یہاں دیکھی ہیں اور پھر انہوں نے کہا ہے اور میں نے خود بھی دیکھا ہے کیونکہ کرونا کے وقت آپ کو یاد ہوگا کہ پوری دنیا کے اندر UN سیکرٹری جنرل نے بھی کافی اس کے اوپر آواز اٹھائی تھی کہ جو جیلز ہیں اس کے اندر اوور پاپولیشن جو ہے وہ ان ایکسیپٹیبل ہے, کیونکہ اوورلی پاپولیٹڈ ہے ہندوستان کی جیلیں جس میں ہزاروں کیا لاکھوں کشمیریوں کو جیلوں میں بند کیا ہوا ہے. تو جب میں یہاں پر آئی میرا پہلا سوال ان سے یہی تھا کہ کیا یہ اوور پاپولیٹڈ نہیں ہے, تو کہتے ہیں ہم ساری فیسلٹیز دے رہے ہیں مگر ابھی تک جو ہے اسلام آباد کا جو جیل ہے وہ ابھی تک نہیں کنسٹرکٹ ہوئی ہے. تو اسلام آباد کی بھی پرزنرز یہاں پر آ رہے ہیں, 6,800 کے لگ بھگ یہاں پہ جو پرزنرز کو انہوں نے یہاں پہ ان کو رکھا ہوا ہے. مگر یہ ایک ان کا ویلڈ ہے جو میں پرائم منسٹر کے ساتھ بھی یہ ٹیک اپ کروں گی کہ جو پرزنرز ہیں ان کی جو شفٹنگ کی جائے 3 ٹائم زیادہ ہیں تو وہ بڑا امپاسبل ہو جاتا ہے سب کو کیٹر کرنا. حالانکہ ان کے پاس اراؤنڈ 150 کیمراز ہیں اینڈ دے ڈیمانڈنگ مور. یہ تو ان کا انٹرنل ہے مگر ہر جگہ جو واچ کیا جاتا ہے تو کہتے ہیں بہت زیادہ ویجیلنس اور بھی چاہیے ہوتی ہے کیونکہ ہر طرح کی باتیں ہو سکتی ہیں. پرزنز ہیں, ہائی سیکیورٹی زونز ہیں, پھر ان کے اوپر چیک بھی رکھنا ہوتا ہے. تو ایک تو یہ بات ہے اور دوسری KPK کہ بہت سے جو پرزنرز کتنی ہے وہاں 500 کے لگ بھگ ہیں KPK کے جو پرزنرز یہاں پر ہیں ان کو بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ جو ان کے علاقے ہیں ان کے اندر ان کو شفٹ کرایا جائے کیونکہ ان کی جو فیملیز آتی ہیں دور دراز علاقوں سے تو وہ ان کے لیے بڑی پرابلم ہو جاتی ہے. تو یہ ان کے وہ جائز جو باتیں ہیں جو کہ میں نے خود بھی جو وہاں پہ جو پوائنٹس دیکھے ہیں نوٹ کیے ہیں اس میں بھی مجھے یہ سب سے امپورٹنٹ لگا ہے کہ اوور پاپولیٹڈ ہونا اور پھر اس کے ساتھ ساتھ جو بچوں کو جس طریقے سے جوونائل پرزنز میں بھی میں گئی ہوں وہاں پہ بھی بچوں سے ایک ایک کو مل کے وہاں جو کریں, بہت سے ان کو ٹیلرنگ کی سکل سکھائی ہیں, کمپیوٹرز کے اوپر وہ CV بنانا سکھایا جا رہا ہے ان کو. تو یہ بہت ضروری ہے کہ ان کو شیطان نہیں بنانا, ان کو صرف گلٹ میں نہیں رکھنا ہوتا اگر ایک پرزنر کو آپ نے رکھا ہے بلکہ اس کی کاؤنسلنگ کی جاتی ہے, چاہے اس کی سائیکولوجیکل کاؤنسلنگ ہے, چاہے اس کی اسپرچل کاؤنسلنگ ہے, چاہے اس کی فزیکل جو نیوٹریشنز ہیں. اور بچے بھی ہیں, بہت سی عورتوں کے یہاں پہ بیبیز ہیں اور چھوٹے چھوٹے انڈر ایج بچے ہیں جن کی پیدائش بھی یہیں پر ہوئی ہے اور بہت سے کیسز جو ہیں مرڈر کے منشیات کے ہیں. مگر پھر بھی یہ میں ان کی کیونکہ میں نے ان کے ساتھ اکیلے میں بھی بات کی ہے ٹو میک شیور کہ ان کے اوپر کوئی پریشر نہ ہو کسی کی طرف سے, تو میں نے ان سے جو باتیں کی ہیں آئی ٹیک. بٹ بات یہ ہے کہ یہاں پہ آ کے مجھے اس چیز کا اور بھی زیادہ احساس ہوا ہے کیونکہ ہماری تو آنکھ کھلی ہے مقبوضہ کشمیر کے جیلوں میں, پرزنز میں. یاسین صاحب کا دوسرا نہیں پہلا گھر ہی جیل ہے. تو جیل میں جب میں نے بھی جانا ہوتا تھا یا میری بیبی نے بھی تو ہمیں بھی جس طریقے سے باڈی سرچ کیا جاتا تھا خاص طور پہ بیٹی کو, اور اب بھی وہ ایک ڈیتھ سیل میں نے خاص طور پہ ڈیتھ سیلز کا بھی ان سے پوچھا اور پولیٹیکل پرزنرز کا. تو جو وہاں کا اگر میں کمپیئر کروں تو زمین آسمان کا ڈفرنس ہے. جو انٹرنیشنل کووننٹس ہیں آن دا رائٹس آف پرزنرز, جو جنیوا کنونشنز ہیں اس کے اکارڈنگلی ہمیں تو کوئی رائٹ ہی نہیں ملا. یہ ٹیلی فون کی بات کرتے ہیں 4.5 سال سے یاسین صاحب سے کوئی اجازت ہی نہیں ہے کہ ہم ان سے ٹیلی فون کے اوپر بھی بات کر سکیں, کوئی لیٹر بھیج سکتے ہیں, کوئی فیکس کو ان سے ملاقات کر سکیں, اور پھر اس کے ساتھ ساتھ نہ ان کا کوئی لائر ہے اور سب سے بڑھ کے فزیکلی پروڈیوس نہیں کیا جاتا ان کو جیل سے. اور جب ان کو لے کے بھی ایک دفعہ گئے سزا سنانے کے لیے لے کر گئے, اور دنیا کی ابھی جو لیٹسٹ جو لیٹر آیا ہے ایمنسٹی انٹرنیشنل اور 5 بڑی آرگنائزیشنز کی طرف سے ہندوستان کی طرف کہ اگلے مہینے وہ جو G20 کا سمٹ کر رہے ہیں وہاں پہ, اس کے اندر انہوں نے اسٹرانگ ورڈز میں کہا ہے کہ اس سے پہلے جو وہاں پولیٹیکل پرزنرز ہیں, جو ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ ہیں, ان کو ریلیز کرایا جائے جو کشمیر کے اندر ہیومن رائٹس کا ابیوز ہو رہا ہے. تو یہاں پہ بھی بڑے بڑے جو پولیٹیکل لیڈرز ہیں پاکستان کے, ان کا بھی میں نے پتا کیا جو ہائی پروفائل ہیں, تو ان کا بھی جو مجھے رپورٹس آئی ہیں کہ موسٹ آف دیم, ساروں کا جو مین تھوڑے سے ہی ہیں ہائی پروفائل, کہ ان کو ملاقات کی اجازت ہے اپنی وائف سے, اپنے بچوں سے اجازت ہے, ان کو لائر رکھنے کی اجازت ہے, ٹیلی فون پہ بات کرنے کی اجازت ہے, ان کو لیٹر بھیجنے کی, ان کو گھر سے کوئی چیزیں بھیجنے کی. تو یہ ہمارے لیے کشمیریوں کے لیے یہ ایک معجزہ ہے کہ اس طرح کے رائٹس ہمیں دے دیے جائیں. ایون مجھے یاد ہے ذوالفقار علی بھٹو شہید کو جب پھانسی دینے لگے تھے اس سے پہلے بھی ان کی والدہ اور ان کی
जो बेटी थी वो उनको खुद वहाँ पे मिलने जाती थी, और ये आलम ये है कि हम लोग यहाँ पे सड़कों के ऊपर अपने राइट्स मांग रहे होते हैं मगर वहाँ पे टस से मस नहीं होते। तो मैं चाहती हूँ कि ये दुनिया को भी एक पैगाम देना चाहती हूँ, ख़ास तौर पे पाकिस्तान के भी जो प्रिजनर्स हैं, ये मत समझें कि मैं एक प्रिजन में आई हूँ मैं दूसरों में नहीं आऊँगी, मैं सब में जाऊँगी, क्योंकि हमारे लिए ये सबसे बड़ी इबादत है ह्यूमन राइट्स। और चाहे उसके अंदर कोई भी हो, चाहे वो कन्विक्टेड क्यों ना हो, सजा याफ्ता क्यों ना हो, डेथ पेनल्टी पे क्यों ना हो, जो उनके राइट्स हैं वो राइट्स उनको मिलने चाहिए। विशाल, ये बताइएगा कि टिकट दिया है जेल का, आपका इसका ऑप्शन लेने का तजर्बा किया, आप पाकिस्तान के अंदर भी बहुत से ऐसे लोग हैं जो झूठे केसेस में जेलों के अंदर बिल्कुल दायरा मिली भी होगी, तो क्योंकि आपसे शायद उम्मीद भी कर सकते हैं, क्या उनके लिए भी कुछ आप बनाए? जी, ये बहुत आपने अच्छा सवाल पूछा है, क्योंकि बहुत से मैटर्स सब जुडिस हो जाते हैं साला साल कोर्ट्स के अंदर भी इतने ज़्यादा केसेस होते हैं, जजेस कम होते हैं, तो वो भी एक बहुत बड़ा एक मैटर होता है कि टाइम पे जस्टिस नहीं मिलता। तो यहाँ से मैंने इनसे भी कहा, रिक्वेस्ट की है कि जो यहाँ के प्रिजनर्स हैं, ख़ासतौर पे इधर इनके जो लीगल केसेस हैं उनकी फाइल्स जो हैं उनको हमें फॉरवर्ड करें। वो हमारी पूरी जो लीगल टीम है ह्यूमन राइट्स के हवाले से, हम उसको चेक करेंगे, जो रिफॉर्म्स हो सकते हैं प्राइम मिनिस्टर को हम देंगे। और ये एक इंटरम सेटअप है और ये टेम्परेरी है और ये एक नॉन पॉलिटिकल सेटअप है, और इसके अंदर जितना मुझसे हो सकता है, क्योंकि मेरे लिए ये एक इबादत है ह्यूमन राइट्स, चाहे वो आपके राइट्स हों चाहे वो किसी के हों पाकिस्तान में, जिस हद तक मैं कर सकती हूँ मैं करूँगी मैडम, ये इंशाल्लाह। बताइएगा कि कश्मीर कौर का जब भी नाम लिया जाएगा, मुश्ताक मलिक का नाम सुना ही हुकूमत लिखा जाएगा, आपको इंसानी हकूक़ के आपको मुशीर बनाया गया है, तो जो आपने जेल का दौरा किया, यहाँ पे एक वर्ड होता है सब अच्छा है, यानी कि जो पैसे देते हैं सब अच्छे हैं। सुप्रीटेंडेंट साहब के खिलाफ तेज दरखास्तें भी अदालत में समाप्त है, फिर अक्सर वाक़यात हो जाते हैं जेल के अंदर ब्लेड्स निकल आते हैं, जेल के अंदर गेम्स ऑपरेट हो रहे हैं, जेल के अंदर मंशियात हो रही है। आप कह रहे हैं तहरीक प्रोग्राम हो रहे हैं, लेकिन क्या आपने उस चीज़ के जब भी कोई दौरा होता है जेल का तो सब अच्छा दिखाया जाता है, बैकफुट पे बिहाइंड दीवार क्या हो रहा है वो चीज़ों में दिखाई? बिल्कुल, ये बहुत ज़रूरी होता है कि अचानक भी दौरे किए जाएं, जेलों के वहाँ पे हालात देखे जाएं। मगर जो मेरा पहला दौरा हुआ है इसके अंदर भी ये मैंने फ्यू आवर्स पहले इनसे बात की है कि मैं यहाँ पे आना चाहती हूँ, और मेरे लिए ये मतलब कि ये मैंने स्टार्ट ही जेल से ही करना था मैंने, क्योंकि मेरा पैगाम भी यही है कि हर जो इंसान है वो इक्वल है, चाहे वो जेल का प्रिजनर है, चाहे वो किसी भी मल्टीनेशनल के अंदर कोई ऑफिसर है, या कोई स्टूडेंट हो किसी यूनिवर्सिटी में जिसको हरास किया जा रहा है, मेरे लिए सब बराबर हैं। और जो कंप्यूटर पोर्टल इन्होंने बनाया, उसका पूरा जो कंप्लेंट सेल जो सिस्टम बनाया है इन्होंने, जिसके थ्रू जो प्रिजनर्स हैं जो अपनी कंप्लेंट्स रिकॉर्ड कर सकते हैं और वो सारी रिकॉर्डेड होती हैं कॉज और डायरेक्ट आईजी को जाती हैं, वो जो सारा सिस्टम है मैंने इनसे रिक्वेस्ट किया है कि वो सारी उसका जो डिटेल्स भी और उसका पूरा का पूरा जो प्रपोजल है वो हमें सेंड करें, हम खुद भी उसको चेक करेंगे और अपनी तरफ से भी जो हमारी बॉडी है वो उसको मॉनिटर करेंगे। विशाल, ये बताइएगा, आप खुद भी विक्टिम हैं ह्यूमन राइट्स वायलेशंस की, आपके हस्बैंड भी जाट जेल में इस वक्त बंद है, कश्मीर में इंसानी हकूक़ के हवाले से आपने एक्टिवली काम किया है, लेकिन इस वक्त आप एक स्टेट को रिप्रेजेंट कर रही है और मुशीर हैं आप वज़ीर आज़म की। अटक जेल में साबिक़ वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान इस वक्त बंद है और उन्होंने बुनियादी सहूलियात के हवाले से शिकायत की है। एक जज साहब ने वहाँ का दौरा भी किया, उन्होंने भी उसको पॉइंट आउट किया है। क्या अटक जेल का दौरा करेंगी आप, वहाँ पे साबिक़ वज़ीर आज़म की जो शिकायत है उनका नोटिस करेंगी? देखिए, मेरे लिए चाहे कोई पॉलिटिकल लीडर हो, चाहे वो कोई आम कैदी क्यों ना हो, चाहे वो कोई बच्चा हो, चाहे कोई फ़कीर हो, जिस तरह बहुत से बेगर्स भी मैंने यहाँ पे देखे जिनको कैद किया हुआ है, सब मेरे लिए बराबर हैं। मगर पॉलिटिकल प्रिजनर्स की जहाँ तक बात होती है, क्योंकि हम खुद एक पॉलिटिकल तहरीक को चला रहे हैं और हम जिस तरह विक्टिमाइज हुए हिंदुस्तान की ब्रुटैलिटीज़ की दुनिया में मिसाल नहीं मिलती, चाहे वो जुल्फ़िकार अली भुट्टो की बात हो जाए, चाहे वो नेल्सन मंडेला की हो जाए, मगर जिस तरीके से पामाल किए गए हैं, ख़ास तौर पे यासीन साहब के जो राइट्स थे कि वो अपना जो केसेस हैं वो अपने आप को डिफेंड करते, या उनको जिस तरीके से एक डेथ सेल में, और वो डेथ सेल 5/7 फीट का है और आपका कितने का डेथ सेल 10/12 का इनका है, और ओपन फैसिलिटी जिस तरह वहाँ पे किया जा रहा है, तो वो बहुत बड़ा एक ज़मीन आसमान का फ़र्क है। और चाहे वो अटक जेल हो, चाहे वो अडियाला हो, चाहे कोई भी मेन बड़ी जेलें हो, दूसरी हो, मेरे लिए सब कैदी जो हैं बराबर हैं, काबिले इज़्ज़त हैं। मेरे लिए कोई मैं क्योंकि हमारे लिए कोई वीआईपी हो या वीआईपी ना हो, वीआईपी अल्लाह की ज़ात है, मतलब अल्लाह के सामने है कौन वीआईपी है। मगर अगर उनके कोई राइट्स लिए जा रहे हैं, मैंने तो वैसे भी वहाँ का दौरा करना है।
क्योंकि ख़ास तौर पे मेरा स्पेशल इंटरेस्ट है जेल्स के अंदर जब से मैंने मिनिस्ट्री संभाली है। मगर उसके साथ साथ जहाँ तक कश्मीर की तहरीक की बात है, वो इस पोर्टफोलियो की बात नहीं है, वो तो हमारी ज़िंदगी है। तो ये एक छोटा सा मौका मिला है, थोड़ा सा टाइम है कि मैं अपनी सर्विस जो है पाकिस्तान को भी थोड़ी बहुत दे सकूं। विशाल, आपने जेलों के अंदर कैदियों के हकूक के हवाले से विजिट किया, कंपेयर करिए हिंदुस्तान की जेलों में जो कैदियों हैं उनको दी जाने वाली सहूलियात के हवाले से। वहाँ तो गैर जो दीगर मज़ाहिब के लोग हैं, मुसलमान हैं, क्रिश्चियन हैं, उनके ऊपर तो अरसा हयात तंग किया गया, बार बार हिंदुस्तान वायलेशन कर रहा है, तशद्दुद कर रहा है। वहाँ तो जेल बना दी गई है, हुकूमत खाने बना देंगे पूरे हिंदुस्तान को गैर मज़ाहिब के लिए, उनके लिए, और पूरी दुनिया इसके ऊपर खामोश है। क्या 40,000 से ज़ायद जो हैं, जो डेटा स्टेटिस्टिक्स हैं कि मोदी के इन 2 टेन्योर्स के अंदर जो इबादत गाहों को टारगेट किया गया है, हज़ारों की तादाद में वहाँ पे मस्जिदों को शहीद किया गया है, वहाँ पे चर्चेस को बर्न किया गया है, वहाँ पे गुरुद्वारों को अटैक किया गया है। तो वहाँ पे तो मतलब कि इतना एक्सट्रीम लेवल पे स्टेट की तरफ से फुल सपोर्ट है हिंदुत्वा के नैरेटिव का। और जो जेलें जो उनकी भरी हुई हैं कश्मीरियों से और वहाँ पे भरी हुई हैं उनके इनसे जो माइनॉरिटीज़ के वहाँ पे लीडर्स हैं या जो वहाँ पे तहरीकें चल रही हैं। मणिपुर में आप देख लें क्या कुछ हो रहा है इस वक्त वहाँ पे, यूपी के अंदर जो गुजरात की अंदर 500 से ज़ायद मस्जिदें हिंदुस्तान मोदी ने वहाँ पे शहीद करवाई। तो वहाँ का तो हालात ही जो है कि दुनिया में सारे रिकॉर्ड ह्यूमन राइट्स वायलेशंस के उन्होंने क्रॉस कर दिए। थैंक मैडम, यू। ये बताइएगा कि ये आप जेल का विजिट कर रही हैं, पिछले 2 घंटे से आपने जेल का विजिट किया है, जबकि बाहर 4 जो है प्रिजनर्स फैंस जो है उनके अंदर कैदी मौजूद है, ठीक है, और शदीद गर्मी का मौसम है, इस हवाले से आपका क्या कहना है? आप अंदर का बात करें या बाहर देखें इन कैदियों से क्या नहीं, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। आप उनको देखें कि आप 2 घंटे से खड़े हो बेचारे, शोर मचा रहे हैं, पानी नहीं है, तो ठीक है, अभी पता चला उनको भी चेक करें। नहीं, तो यही तो मैं कह रही हूँ, मैं क्यों नहीं जाऊंगी वहाँ पे। जब एक पोर्टफोलियो है, जब एक पोर्टफोलियो मैंने लिया, मैंने किसी को दिखाने के लिए नहीं लिया, हमारी जिंदगी ह्यूमन राइट्स के लिए। तो ये इनके भी राइट्स इक्वल है इनके। नहीं, मैं सेटिस्फाइड की बात नहीं, मैंने इनसे सबकी रिपोर्ट्स मांगी है, सबके केसेस जो है प्रिजनर्स के। नहीं, आई कांट बी मैडम तो भाग गई। जो डिजिटाइजेशन के थ्रू जो सारा का सारा रिकॉर्ड होता है, जो सामान प्रिजनर को दिया जाता है, जो फैमिली की तरफ से या जो पैसे जमा करवाए जाते हैं, वो सब डिजिटाइजेशन के थ्रू अकाउंट्स में जमा किया जाता है और सारा कंप्यूटराइज्ड है कि जो भी कैदी को मिलने फैमिली वाले आते हैं वो उनको मेक श्योर करते हैं कि जो जो वो चीज़ें उनको दे रहे हैं उसकी पूरी एक स्लिप हो, जिसके अंदर अगर एप्पल्स हैं, सब्जी है, फल है, कपड़े हैं, वो सारे के सारे रिकॉर्ड में आ जाते हैं। और फिर जब वो मिलते हैं प्रिजनर को तो वो मैंने इनसे पूछा कंफर्म कौन करता है, तो उनका यही रिकॉर्ड होता है, इसी के थ्रू फिर हम उसको जब वो रिसीव कर लेते हैं तो वो हम उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। फिर उसके साथ साथ जो इनकी एक्सरसाइजेज होती हैं, ओपन जिम्स हैं, और बहुत ज़रूरी है क्योंकि देखें एक अगर प्रिजनर है, चाहे वो काफ़ी साल उसने रहना है, तो रिहैबिलिटेशन, उसकी काउंसलिंग करना और उसको एक बेहतर इंसान बनाना, चाहे वो सारी उम्र यहाँ पर है, चाहे वो उम्र कैद की सज़ा हो, मगर वो है तो इंसान, उसको किताबें पढ़ने का, उसको टीवी देखने का, उसको दुनिया में क्या हो रहा है, उसको तालीम अगर वो हासिल करना चाहते हैं तो उनको इलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी के थ्रू इजाज़त है। ये जो फैसिलिटीज़ यहाँ देखी हैं और फिर उन्होंने कहा है और मैंने खुद भी देखा है, क्योंकि कोरोना के वक्त आपको याद होगा कि पूरी दुनिया के अंदर यूएन सेक्रेटरी जनरल ने भी काफ़ी इसके ऊपर आवाज़ उठाई थी कि जो जेल्स हैं उसके अंदर ओवर पॉपुलेशन जो है वो अनएक्सेप्टेबल है, क्योंकि ओवरली पॉपुलेटेड है हिंदुस्तान की जेलें, जिसमें हज़ारों क्या लाखों कश्मीरियों को जेलों में बंद किया हुआ है। तो जब मैं यहाँ पर आई, मेरा पहला सवाल इनसे यही था कि क्या ये ओवर पॉपुलेटेड नहीं है, तो कहते हैं हम सारी फैसिलिटीज़ दे रहे हैं मगर अभी तक जो है इस्लामाबाद का जो जेल है वो अभी तक नहीं कंस्ट्रक्ट हुई है। तो इस्लामाबाद की भी प्रिजनर्स यहाँ पर आ रहे हैं, 6,800 के लगभग यहाँ पे जो प्रिजनर्स को इन्होंने यहाँ पे उनको रखा हुआ है। मगर ये एक इनका वैलिड है, जो मैं प्राइम मिनिस्टर के साथ भी ये टेकअप करूँगी कि जो प्रिजनर्स हैं उनकी जो शिफ्टिंग की जाए, 3 टाइम ज़्यादा हैं
तो वो बड़ा इम्पॉसिबल हो जाता है सबको केटर करना। हालांकि इनके पास अराउंड 150 कैमराज हैं एंड देर डिमांडिंग मोर। ये तो इनका इंटरनल है, मगर हर जगह जो वॉच किया जाता है तो कहते हैं बहुत ज़्यादा विजिलेंस और भी चाहिए होती है, क्योंकि हर तरह की बातें हो सकती हैं। प्रिजन्स हैं, हाई सिक्योरिटी जोन्स हैं, फिर उनके ऊपर चेक भी रखना होता है। तो एक तो ये बात है, और दूसरी KPK कि बहुत से जो प्रिजनर्स, कितनी है वहाँ 500 के लगभग हैं KPK के जो प्रिजनर्स यहाँ पर हैं, उनको भी वो कह रहे हैं कि जो उनके इलाके हैं उनके अंदर उनको शिफ्ट कराया जाए, क्योंकि उनकी जो फैमिलीज आती हैं दूर दराज इलाकों से, तो वो उनके लिए बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। तो ये इनके वो जायज़ जो बातें हैं, जो कि मैंने खुद भी जो वहाँ पे जो पॉइंट्स देखे हैं, नोट किए हैं, उसमें भी मुझे ये सबसे इम्पॉर्टेंट लगा है कि ओवर पॉपुलेटेड होना, और फिर उसके साथ साथ जो बच्चों को जिस तरीके से जुवेनाइल प्रिजन्स में भी मैं गई हूँ, वहाँ पे भी बच्चों से एक एक को मिल के वहाँ जो करें, बहुत से उनको टेलरिंग की स्किल्स सिखाई हैं, कंप्यूटर्स के ऊपर वो CV बनाना सिखाया जा रहा है उनको। तो ये बहुत ज़रूरी है कि उनको शैतान नहीं बनाना, उनको सिर्फ गिल्ट में नहीं रखना होता अगर एक प्रिजनर को आपने रखा है, बल्कि उसकी काउंसलिंग की जाती है, चाहे उसकी साइकोलॉजिकल काउंसलिंग है, चाहे उसकी स्पिरिचुअल काउंसलिंग है, चाहे उसकी फिजिकल जो न्यूट्रिशंस हैं। और बच्चे भी हैं, बहुत सी औरतों के यहाँ पे बेबीज़ हैं और छोटे छोटे अंडर एज बच्चे हैं जिनकी पैदाइश भी यहीं पर हुई है, और बहुत से केसेस जो हैं मर्डर के, मंशियात के हैं। मगर फिर भी ये मैं उनकी, क्योंकि मैंने उनके साथ अकेले में भी बात की है टू मेक श्योर कि उनके ऊपर कोई प्रेशर ना हो किसी की तरफ से, तो मैंने उनसे जो बातें की हैं आई टेक। बट बात ये है कि यहाँ पे आके मुझे इस चीज़ का और भी ज़्यादा एहसास हुआ है, क्योंकि हमारी तो आंख खुली है मकबूजा कश्मीर के जेलों में, प्रिजन्स में। यासीन साहब का दूसरा नहीं पहला घर ही जेल है। तो जेल में जब मैंने भी जाना होता था, या मेरी बेबी ने भी, तो हमें भी जिस तरीके से बॉडी सर्च किया जाता था, ख़ास तौर पे बेटी को, और अब भी वो एक डेथ सेल में, मैंने ख़ास तौर पे डेथ सेल्स का भी इनसे पूछा और पॉलिटिकल प्रिजनर्स का। तो जो वहाँ का अगर मैं कंपेयर करूँ तो ज़मीन आसमान का डिफरेंस है। जो इंटरनेशनल कॉवेनेंट्स हैं ऑन द राइट्स ऑफ प्रिजनर्स, जो जनीवा कन्वेंशंस हैं, उसके अकॉर्डिंगली हमें तो कोई राइट ही नहीं मिला। ये टेलीफोन की बात करते हैं 4.5 साल से यासीन साहब से कोई इजाज़त ही नहीं है कि हम उनसे टेलीफोन के ऊपर भी बात कर सकें, कोई लेटर भेज सकते हैं, कोई फैक्स, कोई उनसे मुलाकात कर सकें। और फिर उसके साथ साथ ना उनका कोई लॉयर है, और सबसे बढ़ के फिजिकली प्रोड्यूस नहीं किया जाता उनको जेल से। और जब उनको लेके भी एक दफ़ा गए, सज़ा सुनाने के लिए लेकर गए। और दुनिया की अभी जो लेटेस्ट जो लेटर आया है एमनेस्टी इंटरनेशनल और 5 बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस की तरफ से हिंदुस्तान की तरफ, कि अगले महीने वो जो G20 का समिट कर रहे हैं वहाँ पे, उसके अंदर उन्होंने स्ट्रॉन्ग वर्ड्स में कहा है कि उससे पहले जो वहाँ पॉलिटिकल प्रिजनर्स हैं, जो ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट हैं, उनको रिलीज कराया जाए, जो कश्मीर के अंदर ह्यूमन राइट्स का अब्यूज़ हो रहा है। तो यहाँ पे भी बड़े बड़े जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं पाकिस्तान के, उनका भी मैंने पता किया जो हाई प्रोफाइल हैं, तो उनका भी जो मुझे रिपोर्ट्स आई हैं कि मोस्ट ऑफ देम, सारों का जो मेन थोड़े से ही हाई प्रोफाइल, कि उनको मुलाकात की इजाज़त है, अपनी वाइफ से, अपने बच्चों से इजाज़त है, उनको लॉयर रखने की इजाज़त है, टेलीफोन पे बात करने की इजाज़त है, उनको लेटर भेजने की, उनको घर से कोई चीज़ें भेजने की। तो ये हमारे लिए, कश्मीरियों के लिए ये एक मोज़ा है कि इस तरह के राइट्स हमें दे दिए जाएं। इवन मुझे याद है जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद को जब फांसी देने लगे थे, उससे पहले भी उनकी वालदा और उनकी जो बेटी थी वो उनको खुद वहाँ पे मिलने जाती थी। और ये आलम ये है कि हम लोग यहाँ पे सड़कों के ऊपर अपने राइट्स मांग रहे होते हैं, मगर वहाँ पे टस से मस नहीं होते। तो मैं चाहती हूँ कि ये दुनिया को भी एक पैगाम देना चाहती हूँ, ख़ास तौर पे पाकिस्तान के भी जो प्रिजनर्स हैं, ये मत समझें कि मैं एक प्रिजन में आई हूँ, मैं दूसरों में नहीं आऊँगी, मैं सब में जाऊँगी, क्योंकि हमारे लिए ये सबसे बड़ी इबादत है ह्यूमन राइट्स। और चाहे उसके अंदर कोई भी हो, चाहे वो कन्विक्टेड क्यों ना हो, सजा याफ्ता क्यों ना हो, डेथ पेनल्टी पे क्यों ना हो, जो उनके राइट्स हैं वो राइट्स उनको मिलने चाहिए। विशाल, ये बताइएगा कि पाकिस्तान के अंदर भी बहुत से ऐसे लोग हैं जो झूठे केसेस में जेलों के अंदर बिल्कुल मिली भी हुई, तो जो आपसे शायद उम्मीद भी कर सकते हैं, क्या उनके लिए भी कुछ आप बनाए? जी, ये बहुत आपने अच्छा सवाल पूछा है, क्योंकि बहुत से मैटर्स सब जुडिस हो जाते हैं साला साल,
कोर्ट्स के अंदर भी इतने ज़्यादा केसेस होते हैं, जजेस कम होते हैं, तो वो भी एक बहुत बड़ा एक मैटर होता है कि टाइम पे जस्टिस नहीं मिलता। तो यहाँ से मैंने इनसे भी कहा, रिक्वेस्ट की है कि जो यहाँ के प्रिजनर्स हैं, ख़ासतौर पे इधर इनके जो लीगल केसेस हैं, उनकी फाइल्स जो हैं उनको हमें फॉरवर्ड करें। वो हमारी पूरी जो लीगल टीम है ह्यूमन राइट्स के हवाले से, हम उसको चेक करेंगे, जो रिफॉर्म्स हो सकते हैं प्राइम मिनिस्टर को हम देंगे। और ये एक इंटरम सेटअप है और ये टेम्परेरी है और ये एक नॉन पॉलिटिकल सेटअप है, और इसके अंदर जितना मुझसे हो सकता है, क्योंकि मेरे लिए ये एक इबादत है ह्यूमन राइट्स, चाहे वो आपके राइट्स हों चाहे वो किसी के हों पाकिस्तान में, जिस हद तक मैं कर सकती हूँ मैं करूँगी मैडम, ये इंशाल्लाह। बताइएगा कि कश्मीर कौर का जब भी नाम लिया जाएगा, मिशाल मलिक का नाम सुना ही हुकूम में लिखा जाएगा, आपको इंसानी की आपको मुशीर बनाया गया है, तो जो आपने जेल का दौरा किया, यहाँ पे एक वर्ड होता है सब अच्छे हैं, जिनकी जो पैसे देते हैं सब अच्छे हैं। सुप्रीटेंडेंट साहब के खिलाफ तेज दरखास्तें भी अदालतें में इल्जाम है, फिर अक्सर वाक़यात हो जाते हैं, जेल के अंदर ब्लेड्स निकल आते हैं, जेल के अंदर गेम्स ऑपरेट हो रहे हैं, जेल के अंदर मनशियात खत्म हो रही है। आप कह रहे हैं तहरीक को सलाम हो रहे हैं, लेकिन क्या आपने उस चीज़ के जब भी कोई दौरा होता है जेल का तो सब अच्छा दिखाया जाता है, बैकफुट पे बिहाइंड दी बार क्या हो रहा है वो चीज़ नहीं दिखाई? बिल्कुल, ये बहुत ज़रूरी होता है कि अचानक भी दौरे किए जाएं, जेलों के वहाँ पे हालात देखे जाएं। मगर जो मेरा पहला दौरा हुआ है, इसके अंदर भी ये मैंने फ्यू आवर्स पहले इनसे बात की है कि मैं यहाँ पे आना चाहती हूँ, और मेरे लिए ये मतलब कि ये मैंने स्टार्ट ही जेल से ही करना था मैंने, क्योंकि मेरा पैगाम भी यही है कि हर जो इंसान है वो इक्वल है, चाहे वो जेल का प्रिजनर है, चाहे वो किसी भी मल्टीनेशनल के अंदर कोई ऑफिसर है, या कोई स्टूडेंट हो किसी यूनिवर्सिटी में जिसको हरास किया जा रहा है, मेरे लिए सब बराबर हैं। और जो कंप्यूटर पोर्टल इन्होंने बनाया, उसका पूछा जो कंप्लेंट सेल जो सिस्टम बनाया है इन्होंने, जिसके थ्रू जो प्रिजनर्स हैं जो अपनी कंप्लेंट्स रिकॉर्ड कर सकते हैं, और वो सारी रिकॉर्डेड होती हैं कॉज और डायरेक्ट आईजी को जाती हैं, वो जो सारा सिस्टम है, मैंने इनसे रिक्वेस्ट किया है कि वो सारी उसका जो डिटेल्स भी और उसका पूरा का पूरा जो प्रपोजल है वो हमें सेंड करें, हम खुद भी उसको चेक करेंगे और अपनी तरफ से भी जो हमारी बॉडी है वो उसको मॉनिटर करें। विशाल, ये बताइएगा, आप खुद भी विक्टिम हैं ह्यूमन राइट्स वायलेशंस की, आपके हस्बैंड भी तिहाड़ जेल में इस वक्त बंद है, कश्मीर में इंसानी हकूक़ के हवाले से आपने एक्टिवली काम किया है, लेकिन इस वक्त आप एक स्टेट को रिप्रेजेंट कर रही है और मुशीर हैं आप वज़ीर आज़म की। अटक जेल में साबिक़ वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान इस वक्त बंद है, और उन्होंने बुनियादी सहूलियात के हवाले से शिकायत की है। एक जज साहब ने वहाँ का दौरा भी किया, उन्होंने भी उसको पॉइंट आउट किया है। क्या अटक जेल का दौरा करेंगी आप, वहाँ पे साबिक़ वज़ीर आज़म की जो शिकायत है उनका नोटिस करेंगी? देखिए, मेरे लिए चाहे कोई पॉलिटिकल लीडर हो, चाहे वो कोई आम कैदी क्यों ना हो, चाहे वो कोई बच्चा हो, चाहे कोई फ़कीर हो, जिस तरह बहुत से बेगर्स भी मैंने यहाँ पे देखे जिनको कैद किया हुआ है, सब मेरे लिए बराबर हैं। मगर पॉलिटिकल प्रिजनर्स की जहाँ तक बात होती है, क्योंकि हम खुद एक पॉलिटिकल तहरीक को चला रहे हैं, और हम जिस तरह विक्टिमाइज हुए हिंदुस्तान की ब्रुटैलिटीज़ की दुनिया में मिसाल नहीं मिलती, चाहे वो जुल्फ़िकार अली भुट्टो की बात हो जाए, चाहे वो नेल्सन मंडेला की हो जाए, मगर जिस तरीके से पामाल किए गए हैं, ख़ास तौर पे यासीन साहब के जो राइट्स थे कि वो अपना जो केसेस हैं वो अपने आप को डिफेंड करते, या उनको जिस तरीके से एक डेथ सेल में, और वो डेथ सेल 5/7 फीट का है, और आपका कितने का डेथ सेल 10/12 का इनका है, और ओपन फैसिलिटी जिस तरह वहाँ पे किया जा रहा है, तो वो बहुत बड़ा एक ज़मीन आसमान का फ़र्क है। और चाहे वो अटक जेल हो, चाहे वो अडियाला हो, चाहे कोई भी मेन बड़ी जेलें हो, दूसरी हो, मेरे लिए सब कैदी जो हैं बराबर हैं, काबिले इज़्ज़त हैं। मेरे लिए कोई मैं क्योंकि हमारे लिए कोई वीआईपी हो या वीआईपी ना हो, वीआईपी अल्लाह की ज़ात है, मतलब अल्लाह के सामने है कौन वीआईपी है, मगर अगर उनके कोई राइट्स लिए जा